Hello children, welcome again. Today's video is about the last part of passive voice. Here we see the usages. Okay, what are the areas where we use passive voice, or what are the areas where passive voice is used? Okay. To maintain a mediocrity in your life, maybe in your studies, maybe you don't want to do anything special. Just be normal, just be usual as others do. But in order to achieve excellence, exactly, you have to go extra mile. And in case if you are ready for that, this is for those people who want to excel their English. English is used in two ways, active voice and passive voice. But in this active voice and passive voice, there are many other components included for this. You have to study so many other things too. So that is what I just told you, that extra mile. You will travel extra for that. So perseverance you need to have, and especially once you are learning a skill, maybe a language, maybe swimming, driving, whatever, they are all learning like they are skills. So while learning this, what happens? You need to be very much creative, and you need to have that smartness to explore everything around you. Okay, so in this case, we have to go through so many of the articles and information. I'm talking about this. See here, episode 104, episode 105, episode 106. You need to watch before you watch this video, because here we have gone through part 1, part 2 and part 3 of passive voice, and this is advanced stage. This is giving you the final touch again. So let me talk something in Hindi. जैसे passive voice का एक perfection के लिए आपको ये 3 previous videos को देखना होगा, and passive voice में subject और object का place very important है. आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एपिसोड 2 उसमें सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस क्या है, क्लोज क्या है, मैं बताया. और ऑब्जेक्ट पासिव एपिसोड 11 ऑब्जेक्ट क्या है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. साथ में एपिसोड 53 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, 54 सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. आई एम नॉट गिविंग यू बर्डन. ये लेवल में पहुंचने के लिए ये सारे आपको चाहिए. सो इफ यू आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड. पासिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बोल चुका है. कह चुका है क्या? ऑब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म प्लस बी3. बी फॉर्म का वीडियो भी हमारे पास है, आप देखोगे बी फॉर्म्स कौन कौन सा है, कैसे है. बी फॉर्म के बाद जब थर्ड फॉर्म है, अनडाउटेडली पासिव वॉइस. पासिव वॉइस का पहचान वो है क्या? बी फॉर्म के बाद बी3, ओनली पासिव वॉइस. इट कैन नेवर बी एनीथिंग एल्स. ओके ओके, सो एग्जांपल इज हियर. आई मेक टी इन द मॉर्निंग. I make tea in the morning. In that case, we know I is subject, make verb, tea object. So please watch this too, and so we'll come to know object क्या है, subject क्या है. So अभी वैसे बता रहा हूँ मैं. make verb है, a action perform कौन करता है? मैं. इसका इफेक्ट किसको करता है? a. ऑब्जेक्ट बन गया. So passive voice जब आप एक्टिव वॉइस से स्टार्ट करते हैं, एक बात अलग है, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि पासिव वॉइस में बी फॉर्म चाहिए, बी3 चाहिए. इसमें फर्स्ट फॉर्म आ गया. सो जहां पर फर्स्ट फॉर्म है पासिव वॉइस नहीं हो सकता. सो आई प्लस सब्जेक्ट मेक है प्लस टी और एक्टिव वॉइस है. ये एक्टिव वॉइस का पासिव वॉइस क्या है आपको पता है? जो टी किसका पोजीशन में आएगा? सब्जेक्ट का जगह लेगा, एंड ए यहां पर जाएगा, एंड वर्ब विल. सो अभी ये वर्ब क्या है? मेक. मेक का थर्ड फॉर्म क्या है? मेड. तो थर्ड फॉर्म से पहले हमारे को बी फॉर्म चाहिए. उसके लिए देखना पड़ेगा कौन सा टेंस का बी फॉर्म चाहिए. टेंस कौन सा है? आई मेक. प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस में हमारा टी आएगा. टी के लिए हम क्या यूज करेंगे? इज. सो अब क्या बन गया? टी इज मेड. टी इज मेड. आई मेक टी. इसमें आपको ये हो सकता टी इज मेड बाय मी. सो अभी ये समझ लो, by me is a case that is not a very standard English. In standard English, you are able to understand exactly from the situation क्या है, किसके द्वारा है. ये मैं आपको भी बताना चाह रहा है. देखो, I make tea in the morning. तो क्या होगा? टी
is made in the morning. So ये नहीं बताया किसके द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, किसी और के द्वारा. So tea is made in the morning. So understood है normally. For example, we are talking about an average Indian house. वहाँ पर चाय बनाने वाला कौन है? हमारा housewives. In some houses or in many houses, house husbands. It could be anything. So यहाँ पर clear है किसके द्वारा बनाया जाता है. तो बोला tea is made in the morning in my house. तो किसी के द्वारा बनाया जाता है. That's the point that we need to learn. Come on. अभी बोला कब. So यहाँ पर आ गया कब की बात, टाइम की बात बता रहे. When? In the morning. So tea is made deliciously. कैसे? है ना? We are just getting the answer. कैसे बनाया जाता है? Wow, tasty, very tasty चाय. Okay, deliciously. And tea is made with my mother. So mother के साथ. तो इसका मतलब मे बी मैं अपने मम्मा के साथ. So tea is made for my family. किसके लिए? For whom? अपने फैमिली के लिए. ये आपका चॉइस है. उसके लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एरिया को एक बार एनालाइज करके ये वाच करके देखो यू विल रियली एंजॉय दिस. ओके, सो आपका राइटिंग, आपका स्पीकिंग, इवन वंस यू रीड, यू नो, योर अंडरस्टैंडिंग ऑल डिपेंड ऑन ओके ऑल दिस थिंग्स. सो कम ऑन नाउ. Another example, the kettle is filled with water. So मैं अगर आपसे पूछूंगा इसका पासिव वॉइस क्या है, शायद आप ढूंढ सकता, सोच भी सकता, पर इम्पॉसिबल है. इधर देखो बी फॉर्म आ गया. बी फॉर्म के बाद V3 पासिव वॉइस में ऑलरेडी लिख चुका है. इसका मतलब पासिव बी फॉर्म प्लस V3 में पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा. द केटल इज फिल्ड विथ वाटर. द केटल इज प्लेस्ड, फिर से बी फॉर्म प्लस V3 ऑन द स्टोव. कहाँ रखा जाता है एंड किसके साथ? देखो हाउ इंटरेस्टिंग इट इज. सो अंडरस्टैंडिंग मैटर्स अ लॉट. द केटल इज प्लेस्ड ऑन दिस stove. Okay, so what happens here? How to understand? अगर आपको डाइजेशन इसके बिना नहीं होता, by me, by my mother, by my father, by India, by Prime Minister of India, no problem at all. ये नहीं केस क्या है? पासिव वॉइस यूज करने के एरिया में आपको पता लग जाएगा. So इतना पता लग गया होगा. अगर नहीं पता लग गया इसका मतलब ये 3 वीडियोस रह गया. So देख लो, हो जाएगा. अब हम देखने जा रहे हैं the passive voice is used when ये क्या है? सेमीकोलन. सेमीकोलन कई बार भी देखो, इसका मतलब है आगे आपको एक लिस्ट है. सो कितना चीज का, कितना पॉइंट्स का लिस्ट है? 4 पॉइंट्स का लिस्ट है, इसलिए सेमीकोलन इज गिवन. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द passive voice is used when के बाद we have a it's not semicolon, sorry, it's colon. See here, this is a semi means half. 1 dot 1 comma. So when both like are dots, you know, they are called colon. Okay, so it is colon. This colon is used for giving a list. It can be 1, 2, 3, many things. So first we see the passive voice is used when we do not know who the agent is. Agent कौन है? Agent कौन है? सब्जेक्ट. मतलब एक सेंटेंस का सब्जेक्ट को यहाँ पर हम क्या बोलता? एजेंट बोलता है. सो हमारे को पता नहीं है क्या एजेंट कौन है, जो जिसने काम किया, जो कर रहा है, करेगा, एंड वो कौन है. जब नहीं पता होता तभी आप क्या यूज करना पड़ेगा? आपको पासिव वॉइस यूज करना पड़ेगा. I had the feeling that I was being followed. I had the feeling that I was being followed. Means was being be form plus followed V3. वैसे इसके लिए आपको टेंस भी सीखना पड़ेगा. ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पासिव वॉइस है, was being followed. तो बट सिस्टम इज दैट मेरे को पता है कोई मेरे को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे को पता नहीं है कौन है. ये पता नहीं कौन. मेरे को ऐसे फीलिंग है जब मैं वॉक कर देख रहे कोई. सो व्हिच मींस somebody is behind me, ये फीलिंग मेरे को है, लेकिन आई डोंट नो हु. सो इन दैट केस क्या अगर आप बोलोगे I had the feeling that somebody was following me, रॉन्ग नहीं है. बट when you don't know कौन somebody something is doing, so क्या वहां पर passive voice becomes the best option. Number 2, when it is obvious to the listener or reader who the agent is. जब हम लिखते हैं और जब हम बोलते हैं या हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं,
हमारे को पता है, हम सब्जेक्ट बाय प्लस एजेंट नहीं लिखता, क्योंकि पढ़ने वालों को, सुनने वालों को पता लगेगा किसकी बात कर रहे हैं, क्लियर है, ऑब्वियस मतलब पक्का है, क्लियर है. सो आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव द ash trays. सो ये मेरे को रिमूव करने के लिए क्या आदेश दिया जा चुका था. सो कहने का मतलब बी फॉर्म का हम रहे, बी फॉर्म हैड बीन प्लस V3, बी फॉर्म प्लस V3 पक्का है, पासिव वॉइस से. बी फॉर्म का जो स्टाइल टाइम के अकॉर्डिंग पता लगेगा कौन सा टेंस में हमारी बात है. सो आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव द ash trays. कहने का मतलब मेरे को बताया जा चुका था क्या, ये करने के लिए. किसके द्वारा, वो कौन सा सिचुएशन में ये बताता है. सो वहां पर फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट एन ऑफिस और ए हाउस, वहां पर किसको बताया जाएगा, मे बी ए सर्वेंट, मे बी एन ऑफिस बॉय, लाइक दिस. ओके, whatever. So I had been instructed. That is the point we need to see. Next, third one is when the agent has already been mentioned. When the agent has already been mentioned. एक बार जो सब्जेक्ट की बात हमने बोल चुका था उसके फिर से बोलना है, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, उसको पासिव वॉइस में we can use. In the next session of the parliament, new laws will be introduced. New laws ऑब्जेक्ट है, will be बी फॉर्म है, इंट्रोड्यूस्ड सिंबल फ्यूचर का पासिव वॉइस में हमने इसको यूज किया है. एम्ड एट स्टॉपिंग डोमेस्टिक वायलेंस, स्टॉप करने के लिए नेक्स्ट पार्लियामेंट का सेशन में क्या किया जाएगा, नया रूल्स को क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लागू किया जाएगा, हमारे सामने रखा जाएगा. रेडी. सो कब, द एजेंट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, राइट, हमारे को पता है किसके द्वारा, एंड उसी के बारे में फिर से बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडियन पार्लियामेंट will what we say that have their meeting on that day. In that meeting or we could say summer session and winter session, in that session क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा. Okay, so fine. When it is not important to know who the agent is, कोई आइडिया नहीं है, यहाँ पर हमने क्या किया था, we do not know who the agent is. And when it is not important, यहाँ पर हमारे को पता नहीं है, बट यहाँ पर पता है लेकिन important नहीं है उसको मेंशन करने का. When it is not important to know who the agent is, कोई भी हो सकता है. इसका मतलब जिसने जो किया वो कम इम्पोर्टेंट है जिसको किया गया, मतलब सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जब किसको देना होता, ऑब्जेक्ट को देना होता, वहां पर हम क्या यूज करना, पासिव वॉइस. एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको पता लग जाएगा. डू यू वांट ए लिफ्ट, ये हम कौन सा सिचुएशन में समझोगे, फिर आंसर आ गया नो थैंक्स, आई एम बीइंग कलेक्टेड, आई एम बीइंग कलेक्टेड. वी कैन मेक ए स्टोरी फॉर दिस. स्टोरी क्या हो सकता, फॉर एग्जाम्पल this is my place where I live, this is the place where I'm working. Okay, it's around 15 kilometers suppose. Okay, so here somebody is going, so I'm just going on a bike here. Oh, super. Okay, whatever, you just make it a bike. Okay, I'm going on bike, and here I have a colleague, here I have a colleague. Ready? So in that case I'm talking to him maybe on a phone like and asking, do you want a lift today, do you want a lift today means do you want me to pick you from your stop to the workplace. Then what happened, मैंने इससे पूछा आपको लिफ्ट चाहिए, इसने बोला आज थैंक यू नहीं चाहिए क्योंकि मैं अभी किधर पहुंच गया, सपोज करो मैं अभी इधर पहुंच गया, कोई एक सवारी एक बाइक वाला आ रहा था, मैं उसके साथ अभी अपने जगह पर जा रही है, आज मेरे को क्या नहीं चाहिए, लिफ्ट नहीं चाहिए. सो आई एम बीइंग कलेक्टेड, मेरे को कोई लेके जा रहा है. तो ये इंफॉर्मेशन अगर मैं बोलूंगा वो बंदा है जो भी इसका नाम बोलने से उसको पता नहीं है क्योंकि कोई एक नया बंदा स्ट्रेंज पर्सन है, सो इसलिए उसका नाम बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन क्या किया जा रहा है वो जरूर बताना पड़ता है. सो आई एम बीइंग कलेक्टेड, किसको, ऑब्जेक्ट. कहने का मतलब somebody is collecting me. So यहाँ पर somebody
जिसने फोन किया उसके लिए कोई अजीब पर्सन है, सो अजनबी है, सो क्या होगा, इसको बताने का जरूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा, नो प्रॉब्लम डोंट वरी, टेक योर टाइम, आई एम बीइंग कलेक्टेड, मींस दैट पर्सन अभी क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट मेंशन करने का, सो वहां पर किसका इंपॉर्टेंस हो गया, मी क्या बन गया, आई बन गया ऑब्जेक्ट, वहां पर इसको इंपॉर्टेंस देके, सो दीज आर द एरियाज देयर वी हैव टू, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मीन्स व्हेनेवर यू आगे कोई भी रीडिंग करोगे, आप सुनोगे, तभी देखो कौन सा स्ट्रक्चर में यूज किया गया था, and make examples from your side and send to my comment box, and I will really see and reply, okay, in case if so. Hope you understood what I was trying to say. Okay, if you are watching for the first time, don't forget to subscribe to the channel. Let's learn more, let's learn together. Bye bye.